Bismillahirrahmanirrahim. Students, English department once again welcomes you. As we directed you yesterday to listen to the second lecture delivered on the dying sun. So we hope your preparation is expected up to the mark. Now we start our second lecture on the lesson. The Dying Sun by Sir James Jeans. Its translation to get the idea of the whole lesson. Translation important है इस lesson का idea catch करने के लिए. Let's start its first paragraph. A few stars are known which are hardly bigger than the earth, but most of them are so large that hundreds of thousands of earths could be packed inside each and leave room to spare. Here and there we find an immense star large enough to contain millions and millions of earth. Any difficulty? Could be packed, placed, put, confined inside each and leave room to spare. Here and there we find an immense star. Immense, huge, large, massive, gigantic, enormous, and we find an immense star large enough to contain millions and millions of earths. चंद एक सितारों के बारे में मालूम है जो ज़मीन से बामुश्किल बड़े हैं, मगर उनमें से अक्सर इतने ज़्यादा वसी हैं कि हर एक में लाखों ज़मीनें रख दी जाएं तो फिर भी जगह बच जाए. एंड द टोटल नंबर ऑफ स्टार्स in the universe is probably something like the total number of grains of sand on all the seashores of the world. Probably, perhaps grains of sand, particles of sand on all the seashores, coasts of the world. और कायनात में सितारों की मजमूई तादाद गालबन रुए ज़मीं पे साहिले समुद्रों पे मौजूद रेत के ज़रात की मजमूई तादाद के बराबर होगी. सिमिली है सर जेम्स जीन्स यूनिवर्स के नंबर ऑफ स्टार्स को कंपेयर करते हैं तो बताते हैं कि गालबन रूए ज़मीन पे जितने भी साहिल समुद्र पे रेत के ज़रात हैं उनकी तादाद के बराबर सितारे मौजूद हैं. सच इज द लिटलनेस ऑफ आवर होम इन स्पेस व्हेन मेजर्ड अप अगेंस्ट द टोटल सब्सटेंस ऑफ द यूनिवर्स. लिटलनेस, स्मॉलनेस, टाइनीनेस measured up, calculated against the total substance material size of the universe. जब हम खिला की मजमूई हुजम को नापते हैं तो हमें अपना ये घर इतना छोटा मालूम होता है. स्टूडेंट्स, अब इस रीडिंग के बाद आप कुछ क्वेश्चंस भी खुद से अटेम्प्ट कर सकते हैं. खुद सोचा करें इसमें क्या क्वेश्चन बन सकते हैं. हाउ डिड द राइटर कंपेयर स्टार्स विद ग्रेन्स ऑफ सैंड. हाउ डज द पोएट कंपेयर द अर्थ विद द यूनिवर्स एटसेट्रा. ये क्वेश्चंस आप इस पैराग्राफ के बाद इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट पैराग्राफ. दीज मिलियंस ऑफ स्टार्स आर वॉन्डरिंग अबाउट इन स्पेस. ये लाखों सितारे खिला में घूम फिर रहे हैं.
वॉन्डरिंग, लॉइटरिंग, स्ट्रॉलिंग, रैमलिंग, घूम फिर रहे हैं. यू नो, वॉन्डरिंग इज एमलेस movement, drifting. A few form groups which journey in company, but most of them travel alone. चंद एक ग्रोहों की शक्ल में चंद एक ग्रोह बनाते हैं और वो एक साथ सफर करते हैं, मगर उनमें से ज्यादातर अकेले सफर करते हैं. And they travel through a universe so immense that it is very, very rare indeed for one star to come anywhere near to another. Travel, journey, move, immense, enormous, indeed, in fact, rare, seldom, to come anywhere near to another. वो कायनात में, इतनी बड़ी कायनात में इस तरह सफर करते हैं कि ऐसा वाकई बहुत ही कम होता है कि एक सितारा किसी दूसरे सितारे के करीब आ जाए. यहां से क्वेश्चन बनेगा, हाउ डू स्टार्स ट्रेवल, या वाई stars seldom collide, why stars seldom come close to one another. For the most part, each star makes its voyage in complete loneliness, like a ship on an empty ocean. It's some words. Voyage, students, it's very important word, examination point of view. Voyage means sea journey. Voyage, sea journey, loneliness, isolation, like a ship on an empty ocean. Ocean, sea, empty, unoccupied, vacant. क्योंकि ज्यादातर एक सितारा मुकम्मल तन्हाई में सफर करता है, जैसे एक खाली समुंदर में एक बहरी जहाज मौजूद हो. अब स्टूडेंट, वॉयज तो होता है सी जर्नी. आप हैरान होंगे कि यहां वॉयज का वर्ड क्यों यूज हुआ है. एक्चुअली राइटर जो है वो मेटाफोरिकली स्टार को शिप कह रहा है, इस्तिआरा के तौर पर, मेटाफर के तौर पर स्टार को शिप कह रहा है, एग्जाम्पलीफाई कर रहा है. तो अब आपको ज्यादा आइडिया क्लियर हो गया कि वो क्यों सितारे एक दूसरे के करीब नहीं टकराते. वैसे हमारे फिल्मी सितारे तो बड़े टकराते हैं जी, सब नंबर वन कह रहे होते हैं, लेकिन ये जो एक्चुअल स्टार्स हैं, रियल स्टार्स हैं, दे डोंट फाइट. सुनिएगा, क्योंकि ज्यादातर हर एक सितारा मुकम्मल तन्हाई में सफर करता है, जैसे एक खाली समुंदर में एक बहरी जहाज हो. देखिए ना, इतना बड़ा समुंदर हो और उसमें अगर एक जहाज खड़ा भी हो तो वो उसका होना ना होना एक ही है. इन अ स्केल मॉडल इन विच द स्टार्स आर शिप्स, द एवरेज शिप विल बी well over 1,000,000 miles from its nearest neighbor. एक नमूने के नक्शे के तौर पे जिसमें सितारों को बहरी जहाज समझ लिया जाए, तो हर जहाज अपने करीब तरीन हमसाये से औसतन 10 लाख मील से भी ज्यादा फासले पर होगा. तो इतना ज्यादा नियरेस्ट नेबर से डिफरेंस होता है. 1,000,000 माइल्स 10 लाख मील से भी ज्यादा. फ्रॉम दिस इट इज इजी टू अंडरस्टैंड व्हाई अ स्टार सेल्डम फाइंड्स अनदर एनीवेयर नियर इट. इससे ये अंदाजा लगाना आसान है कि क्यों एक सितारा दूसरे के करीब शाज़ो नाज़िर ही आता है, सेल्डम बहुत कम ही
आता है। तो स्टूडेंट इसका जो मेजर क्वेश्चन है वो यही है, हाउ डू स्टार्स ट्रेवल, व्हाई डोंट स्टार्स सेल्डम कोलाइड, एटसेट्रा। नेक्स्ट पैराग्राफ, वी बिलीव however that some 2000 million years ago this rare event took place and that another star wandering blindly through space happened to come near the sun. 2000 million years, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 2000 मिलियन ईयर्स, 2 अरब साल, 2 अरब साल। वॉन्डरिंग, वॉन्डरिंग, लॉइटरिंग, रोमिंग, वॉन्डरिंग, ब्लाइंडली, ब्लाइंडली, स्पीडीली, स्पीडीली, रैंडमली, रैंडमली, अंधाधुंध, थ्रू स्पेस, हैपन टू कम नियर द सन। ताहम हमें यकीन है कि कोई 2 अरब साल पहले एक नायाब वाकया रूनुमा हुआ। रेयर, यूनिक, नॉट फ्रीक्वेंट, रेयर, नायाब। एक नायाब वाकया रूनुमा हुआ कि एक सितारा खिला में अंधाधुंध हरकत करते हुए सूरज के करीब आ गया, वो जिसकी लास्ट लेक्चर में आपको डायग्राम भी दी गई थी। जस्ट एज द सन एंड मून रेज टाइड्स ऑन द अर्थ, सो दिस सेकंड स्टार मस्ट हैव रेज टाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ द सन। जैसा कि सूरज और चांद जमीन पे लहरें पैदा करते रहते हैं, टाइड्स मीन्स वेव्स, टाइड्स वेव्स, लहरें, मौजें पैदा करते रहते हैं। सो दिस सेकंड स्टार मस्ट हैव रेज टाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ द सन, तो उस दूसरे सितारे ने भी जरूर सूरज की सतह पे लहरें छोड़ी होंगी। But they would be very different from the little tides which the small mass of the moon raises in our oceans. An immense tidal wave must have travelled over the surface of the sun, at last forming a mountain so high that we can hardly imagine it. एक बहुत बड़ी तूफानी लहर सूरज की सतह पर गुजरी होगी, जिसने आखिरकार इतने बुलंद पहाड़ की शक्ल इख्तियार कर ली जिसका तस्वर भी हमारे लिए मुश्किल है। As the cause of the disturbance came nearer and nearer, the mountain would rise higher and higher. Disturbance, change, turmoil. The mountain would rise higher and higher. जो उस तब्दीली की वजह करीब से करीब तर होती गई, तो उस कदर ही थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, सॉरी, आई थिंक यहां से है, एज द कॉज ऑफ डिस्टर्बेंस केम नियर एंड नियरर, केम नियरर एंड नियरर, द माउंटेन वुड राइज हायर एंड हायर। जो उस तब्दीली की वजह करीब से करीब तर आती गई, तो ये पहाड़ बुलंद से बुलंद तर होता गया। And before the second star began to move away again, its tidal pull had become so powerful that this mountain was torn to pieces and threw off small parts of itself into space. Torn to, torn, tear, tore, torn, tear, tore, torn, torn, split, torn, split, broke,
कट गई, फट गई। इससे पहले कि वो दूसरा सितारा दोबारा पीछे हटने लगता, उसकी लहरों का खिंचाव इस कदर ताकतवर था कि वो पहाड़ी टुकड़ों में बट गई और उसके छोटे छोटे टुकड़े खिला में फैल गए। थ्रू ऑफ स्कैटर्ड स्प्रेड, खिला में फैल गए। These small pieces have been going round the sun ever since. ये छोटे छोटे टुकड़े तब से खिला में सूरज के गिर्द घूम रहे हैं। They are the planets, great and small, of which our Earth is one. ये बड़े और छोटे सियारे हैं जिनमें से जमीन भी, हमारी जमीन भी एक सियारा है। ये छोटे बड़े सियारे हैं जिनमें से हमारी जमीन भी एक सियारा है। शायद ये लेसन का मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। इसमें क्वेश्चन बनेंगे, व्हाट हैपेंड व्हेन द सेकंड स्टार केम क्लोजर टू द सन, या व्हेन द सेकंड स्टार वेंट बैक, जब पीछे हटा, या व्हाट आर प्लैनेट्स, how did they come into existence. Next paragraph, the sun and the other stars we see in the sky are all extremely hot, far too hot for life to exist on them. सूरज और जो दूसरे सितारे हम आसमान पे देखते हैं वो इस कदर गर्म है कि उन पे जिंदगी का वजूद मुमकिन नहीं है। इन द स्काई, स्टूडेंट जैसे हम कहते हैं ना आसमान पर उर्दू में, तो ऑन द स्काई नहीं होता, इन द स्काई होता है। एक्सट्रीमली, इमेंसली, एक्सेप्शनली, फॉर टू हॉट फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट ऑन देम। TOO and TO, TOO and TO मेक अ सेंटेंस नेगेटिव। अब सुनिएगा नेगेटिव कैसे बनेगा। सूरज और दूसरे सितारे जो हम आसमान पे देखते हैं वो इस कदर गर्म हैं कि उन पे जिंदगी मुमकिन नहीं है। So also no doubt were the pieces of the sun when they were first thrown off. तो बिलाशुबा वो भी सूरज के ही टुकड़े थे जब पहले पहल वो खिला में बिखरे। वो जो माउंटेन स्प्लिट हुई थी सेकंड स्टार के पीछे हटने से। ग्रेजुअली दे बिकेम कूलर until now they have very little heat of their own left, their warmth coming almost entirely from the radiation which the sun pours down on them. Gradually, stepwise, slowly, आहिस्ता आहिस्ता वो ठंडे होते गए, हत्ता कि अब उनकी अपनी हरारत बाकी नहीं बची। वेरी लिटिल मीन नेग्लिजिबल, ना होने के बराबर, मतलब नहीं है, हत्ता कि अब उनकी अपनी हरारत बाकी नहीं बची। Their warmth coming almost entirely, completely, fully, utterly from the radiation rays which the sun pours down leaves on them. उनकी हरारत तकरीबन मुकम्मल तौर पर सूरज की उस तापकारी से आती है जो वो उन पे छोड़ता है। तो स्टूडेंट यहां हम थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर सकते हैं बिटवीन प्लैनेट्स एंड स्टार्स। तो स्टार्स की अपनी लाइट होती है, अपनी हीट होती है, प्लैनेट्स की अपनी लाइट नहीं होती, अपनी हीट नहीं होती। दे बोरो फ्रॉम द सन। In course of time, one of these cooling pieces gave birth to life. In course of time, in the meantime, इस दौरान इन ठंडे होते हुए टुकड़ों में से
एक टुकड़े ने जिंदगी को जन्म दिया। तो ये कौन सा पीस है? डेफिनेटली ये पीस एक प्लैनेट है। कौन सा प्लैनेट? जिसने लाइफ को जो है होस्ट किया, लाइफ की जिंदगी की मेजबानी की, तो वो अर्थ है। वी डू नॉट नो हाउ, व्हेन और व्हाई दिस हैपेंड। हमें नहीं मालूम ऐसा कैसे, कब और क्यों हुआ। स्टूडेंट, ये बड़ी कंट्रोवर्शियल लाइन है। हमने सेकंड लेक्चर में पेगन फिलॉसफी वर्सेस इस्लामिक फिलॉसफी का ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये राइटर कहता है हमें नहीं मालूम ये कैसे, कब और क्यों हुआ। It started in simple organisms whose living power consisted chiefly and their being able to reproduce themselves before dying. Organisms, living cells, beings. It started in simple organisms. ये सादा अज्जा में शुरू हुई, जिंदगी सादा अज्जा में शुरू हुई। Whose living power consisted based chiefly, mainly, majorly in their, and नहीं है, in होना चाहिए, in their being able to reproduce themselves before dying. ये सादा अज्जा में शुरू हुई जिसकी असल ताकत इस बात पे मबनी थी कि ये मरने से पहले अपनी अफजाइश करने के काबिल होते, तो रिप्रोडक्शन। But from these humble beginnings came a stream of life, which, growing ever more and more complex, has in the end produced beings whose lives are largely centered in their feelings and ambitions, their sense of beauty, and the religions in which lie their highest hopes and noblest desires. But from these humble beginnings, humble, ordinary, cheap, poor, lowly, L-O-W-L-Y, lowly beginnings start. याद रखिएगा, हम्बल का मतलब सबमिसिव भी होता है, बड़ा ओबीडियंट किस्म का, बड़ा आजिज किस्म का, लेकिन हम्बल एडजेक्टिव यूज होता है पुअर के लिए, मामूली के लिए भी, माइनर, ऑर्डिनरी। मगर इन मामूली शुरुआत से केम अ स्ट्रीम ऑफ लाइफ, स्ट्रीम फ्लो ऑफ लाइफ, करंट ऑफ लाइफ, जिंदगी का एक बहुत चल पड़ा, विच ग्रोइंग एवर मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स, जो कि हमेशा ही पेचीदा से पेचीदा होता जा रहा है, हैज इन द एंड प्रोड्यूस्ड beings, human beings whose lives are largely centered, focused in their feelings and ambitions. Feelings, sentiments, ambitions, aims, objects. आखिरकार उनमें से ऐसे इंसान वजूद में आए जिनकी ज्यादातर जिंदगी का मकसद उनके जज्बात और उनके मकासद, ambitions, aims, objects, मकासद, their sense of beauty, खूबसूरती की हिस्स, जैसे हम सम टाइम किस चीज को लाइक कर रहे होते हैं, किस चीज को डिसलाइक कर रहे होते हैं, तो ये हमारी सेंस ऑफ ब्यूटी होती है। हमारी लाइक्स डिसलाइक्स होती हैं। इवन एक 5-6 मंथ बेबी भी अपनी प्रायोरिटी सेट करना शुरू कर देता है कि किसके पास उसने जाना है, किसके पास उसने नहीं जाना, तो ये उसकी क्या है, सेंस ऑफ ब्यूटी है, या लाइक्स एंड डिसलाइक्स है। So sorry, there was a problem. We start our last sentence once again. तो बात हो रही थी whose lives are largely centered in their feelings and ambitions, जिनकी जिंदगी का ज्यादातर मकसद उनके एहसासात और उनके मकासद पे मबनी होता है। their sense of beauty, उनकी खूबसूरती की हिस्स, and the religions in which lie their highest hopes and noblest desires.
और उनके मज़ाहिब जिनमें उनकी आलातर उम्मीदें और उनकी नेक ख्वाहिशात मौजूद होती हैं। स्टूडेंट्स, ये क्या है हाईएस्ट होप्स एंड नोबलेस्ट डिजायर्स? ये डेफिनेटली कॉन्सेप्ट ऑफ हेवन है, कॉन्सेप्ट ऑफ पैराडाइज है कि रिलीजन है तो उसकी हाईएस्ट होप ये है कि उस शख्स की फॉरगिवनेस हो, सॉल्वेशन हो, रिडेम्पशन हो, बख्शिश हो। नोबलेस्ट डिजायर क्या है कि उसको जन्नत मिले, उसका खालिक उस पर खुश हो, राजी हो। तो लास्ट सेंटेंस को हम थोड़ा सा दोबारा ट्रांसलेट कर लेंगे। बट फ्रॉम दीज हम्बल बिगिनिंग्स केम अ स्ट्रीम ऑफ लाइफ विच growing ever more and more complex has in the end produced beings whose lives are largely centered in their feelings and ambitions, their sense of beauty and the religions in which lie their highest hopes and noblest desires. मगर इन मामूली शुरुआत से जिंदगी की एक लहर चल पड़ी जो कि हमेशा से पेचीदा तर होती जा रही है। आखिरकार इसने ऐसे इंसानों को वजूद बख्शा जिनकी जिंदगी का ज़्यादातर मकसद उनके एहसासात और उनके मकासद पे मबनी था, उनकी खूबसूरती की हिस्स, उनके मज़ाहिब जिनमें आला तर उम्मीदें और नेक ख्वाहिशात मौजूद थीं। अब इस पैराग्राफ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, राइट, कि हाउ और why is life not possible on stars? फिर क्वेश्चन बनेगा how did life come into being? What is meant by highest hopes and noblest desires in respect of religions? ये क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। थैंक यू सो मच।